क्लाउड। सर उसमें बहुत बातें हो जाती हैं, फिर सवाल बहुत पीछे नहीं। आस्क द क्वेश्चन इन द ग्रुप चैट एंड टैग मी, तो या तो आपको वैसे भी जवाब मिल जाएगा, एंड इफ यू डोंट गेट योर आंसर देन obviously I'll be there to help you out. Okay, don't worry about it. So let me just finish the last sip and then we'll start. I'm just exhausted, to be very honest. I'm just exhausted, but hey, once you commit to teaching the peeps, you have to fulfill your commitments. Yeah. इनको थोड़ा सा कम कर लेते हैं 5 पे। चलो, let's see. Let me also fix my pens. This is basically the topical booklet that you guys have free access to. It's free for everybody. The videos, if you want to purchase the marking scheme, you can obviously do that by contacting Miss Noor, and you'll be provided with the email and password on the LMS, which is our learning management system. But if you want to just get this booklet and you want to just solve it on your own, because it already has it's made for the May June 2025 papers. I've been solving a lot of questions. Here's a little introduction about me, and yeah, that's pretty much it. But yeah, a lot of students helped me make this booklet, and if you want to purchase the marking scheme, you could obviously do that through Miss Noor. And this booklet is arranged in a very beautiful manner, so the chapter number 1 that we'll be covering today is states of matter, and we'll look into all the 100 papers for states of matter. So effectively, after we are done with these 100 paper questions for chapter number 1, you guys will be good to go. So nothing out of this would be tested in your exam. Whatever you do today, or in however many parts we do it, is more than enough. It's more than enough for, from states of matter. Theoretically speaking, these are the type of questions that can come without, as far as questions other than these are concerned, they won't be tested, because your syllabus follows, Cambridge follows a very instructed syllabus. So after you're done with your concepts, after you're done with your lectures, I highly advise to go over this topical booklet, because it's curated in a very beautiful manner. Done. And those who just want access to this booklet, it's free for everybody. So it's been shared, and if you can't afford the marking scheme, you have your year written here. The session is also written here, the examination session, and the variant is also written here. So you guys can check every single answer on your own if you want, right? So without further ado, let's just start off with the question. Question number 1 says, all gases diffuse. Choose from the list. Okay, what is diffusion, everybody? What do we mean when we talk about diffusion? Diffusion is the net movement or the spreading of particles from a region of high conc to a region of low conc down the concentration gradient. We've been over this multiple times. Okay. Choose from the list of formulae the gas which diffuses most quickly. Now, listen. Which gas would diffuse more quickly? Well, diffusion, diffusion depends on two things. It depends on the relative molecular mass, and it depends on temperature, right? Now, because there's no mention on temperature, about temperature, you'd assume that temperature is constant, because they've not mentioned anything about the temperature. Now, the only thing that you need to take into consideration is the MR. MR stands for relative molecular mass, right? And how do you calculate the relative molecular mass? Well, it's pretty easy. You sum the ARs, right? So you sum the individual ARs. And how do you calculate the ARs? It's given in the periodic table. So carbon is 12, it's given in the periodic table. Oxygen is 16, add them together, you get 28. Done? Carbon is 12, oxygen is 16, times it by 2 because you have two O's, add them together, you get 44. Carbon is 12, hydrogen is 1, you times it by 4 because you have 4 hydrogens. How much do you get? 16. That's the MR, right? AMU is the unit for MR, atomic mass unit, which is the mass of 1/12 of a carbon atom. We've been over this. Done. Nitrogen is 14. You guys also have to help me out. Nitrogen is 14, oxygen is 16, times it by 2. What do you get? 32 plus 14. 44, if I'm not wrong. 32 plus 14, 46. Sorry, 46. Thank you. Yeah, so you are a chartered accountant by profession and you can't. Okay, sorry. Sulfur is 32, oxygen is 16, times it by 2. What do you get? 64. Now, you need to understand that the lower the relative molecular mass is, the quicker it'll diffuse. Because think about it like this.
A fat guy is racing a very, very slim, fit, athletic guy, right? So a fat guy weighs 160 pounds, and the slim guy weighs maybe 60 pounds, 80 pounds, or 90 pounds, right? So who is going to win the race? Think rationally. Obviously, the slim, fit guy, the athletic guy, because he weighs less, so he'll be able to diffuse quickly. He'll be able to run quickly, right? Just rationally speaking, practically speaking, right? So draw a circle around your answers. Now check them out. You have 44, you have 16, you have 46, you have 64, and you have 28. Which of these would diffuse the quickest? Well, obviously the one with the lower relative molecular mass, that is CH4, sir. So CH4 would diffuse. Draw a circle. This is a square, you can draw a circle, right? Explain your answer. Because CH4 has the lowest relative molecular mass. Done, sir? Sir, but temperature, there's no mention of temperature, right? Which means that temperature is assumed to be constant. Whenever you're checking out the effect of one thing, the other factor in itself is going to be assumed to be constant. Done? Okay. A student investigates the reaction of small pieces of zinc with dilute hydrochloric acid at 25 degrees Celsius. That's the temperature, and there's going to be a reaction between the two. A sample of hydrogen is put into a gas syringe. Okay, great. So there's this gas syringe, and they've put hydrogen in it. The end of the gas syringe is then blocked so that no gas can escape. Explain using the kinetic particle theory why decreasing the pressure in the gas syringe increases the volume of gas when the temperature stays constant. We've done this. Now, what he's saying that you have a gas syringe, and what you've done is you've blocked it here, right? And let's assume the piston was right here. Initially, the piston was in the middle. Now, what you are doing is you are decreasing the pressure, which means you're moving the piston outwards, right? And if the piston is moved outwards, first the volume that the gas was occupying was maybe 10 cm cube, and now that you've moved the piston outwards, the volume that the gas will now be occupying might be 15 cm cube or 18 centimeter cube, right? And what is the reason for that? He says, tell me what is happening to the particles. Use the kinetic particle theory. What is happening to the particles when you decrease the pressure? So all the physics geeks are going to say, hey sir, pressure is inversely proportional to volume. So if you decrease the pressure, the volume is going to increase. They'll give you a 0 mark for it. Do you know why? Because he's not asking you about the relationship. He's saying use the kinetic particle theory. Tell me what happens to the particles when you decrease the pressure that the volume starts to increase. Obviously, when you decrease the pressure, what happens to the particles? The particles move further apart. Therefore, they occupy more volume, right? So you can easily say, hey, when you decrease the pressure, the particles move, and we've done this, move further apart, due to which the volume of gas increases, we know. So they're very, very pet questions, simple pet questions, not because of the speed, Harim. Because when you decrease the pressure, you move the piston outwards. Ab gas zyada space occupy karegi, right? Let's suppose there's this guy who farts in a small room, right? So the particles are gonna spread, right? They're gonna spread, but they're only gonna occupy this much volume. But if the room gets bigger for it, effectively the small room was when the piston was in the middle. But now you've moved the piston outwards, you've increased the pressure, so now the room becomes bigger. So the particles will move further apart from each other, therefore occupying a greater volume. Done? Hope it made sense. Okay. Figure 5.1 shows, and let me just erase this because obviously we also have to use this as our marking scheme. Done. Figure 5.1 shows the displayed formula of compound A. Compound A is a solid at 20 degrees Celsius. Describe the motion. What is the motion of solids? We've done this a gajillion times. And what is the arrangement? What is the motion of solids? ये रेस्ट के वाले सवाल है नहीं मरियम, ये रेस्ट वाले नहीं है, ये सवाल टॉपिकल बुकलेट के. Okay, what is the motion of solid? Well, we know that solid particles vibrate about a fixed position. So we say, hey, they vibrate about. Okay, you just can't write vibrate, right? Because it's saying describe. So you have to write a few more words, right? Just saying vibrate or vibrating is gonna be written in the marking scheme, obviously, but you have to use your brain at times. It's saying describe. Describe का मतलब है थोड़ी सी मुझे explanation नहीं, थोड़ी सी description दे. क्या हो रहा होता है? They vibrate about a fixed position. Done, sir. And what's the arrangement? What's the arrangement of solid particles? We know that solid particles are
are having a regular arrangement, or it's a lattice of atoms, right? You could say regular arrangement. What is a lattice? Lattice is just a fancy word for regular arrangement. It's just a fancy way of saying regular arrangement. So what's the arrangement? It has a regular arrangement of particles. Done, sir? Move forward. Oh my God, this is a very beautiful question. Somebody said, sir, the particles are close together. That's not the arrangement. That's the particle separation. And I've gone over a lot of this in a lot of detail in chapter number 1, that there's a difference between arrangement, motion, and particle separation. Okay, a student investigates the reaction between pieces of blah 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 at 25 degrees Celsius. A sample of carbon dioxide is pushed into a gas syringe. The end of the gas syringe is then blocked so that no gas can escape. Explain using the kinetic particle theory why increasing the pressure. Again, tell me what happens to the particles, why increasing the pressure decreases the volume of gas. Now, the physics geeks are going to say, hey, pressure is inversely proportional to volume. So if you increase the pressure, the volume is going to decrease. 0 marks. Why? Because he's asking you, tell me in terms of kinetic particle theory. And in chemistry, he'll always want the answer in kinetic particle theory. What does he mean by this? He means for you to tell him what happens to the particle. So think about it. If this is the gas syringe, let's suppose if this is the gas syringe and the piston was right here initially, right? And the particles were like, here having fun. This is the initial phase. Now what's going to happen is, once you apply pressure, once you apply more pressure to it, which means you move the piston inwards, you're applying force to it. What is happening to the particles? What is happening to the particles? First, these particles occupied a volume of 10 cm cube, let's assume. Now they'll occupy a volume smaller than 10 cm cube, maybe 6 cm cube. Why? Because increasing the pressure resulted in the gas particles moving closer together. So you need to tell him about the particles, right? So you could say the particles are pushed, the particles of carbon dioxide, we have carbon dioxide, okay, great. So the particles of carbon dioxide are pushed closer together, due to which the volume decreases, thus or therefore the volume decreases. Done, sir. Easy peasy lemon squeezy. हाँ मुफ्ते के आंसर्स हैं. शोज द डिस्प्लेड फॉर्मूला. और आप देखेंगे लिटरली यही सवाल हैं पूरे आपके 5 पेपर्स देखें, 50 साल के देख लें, बेशक जितने मर्जी देख लें, यही सवाल हैं इनके. ओके, फिगर 5.1 shows the displayed formula about compound 1. Compound A. Compound A is a liquid. Describe the motion and separation. Okay, now that's beautiful. What is the motion of liquid particles? Again, we've done this in chapter 2, in chapter number 1. What happens? What is the motion of liquid particles? The liquid particles slip and slide over each other. Great. So the particles slip and slide over each other, just like you see your waves, right? अगर आपने कभी waves देखे हो तो waves, एक wave के ऊपर दूसरा wave आ रहा होता है, उसके ऊपर तीसरा wave आ रहा होता है. So the particles slip and slide, or you could just say slide over each other, over each other. Done, sir? And why do they slip and slide? My question, why do they slip and slide over each other? If the examiner were to ask you why, because of relatively weak intermolecular forces of attraction. Yeah, that's great. Awesome. Compared to solids, obviously. Separation इसकी क्या है? Separation बताएं. अब arrangement नहीं बतानी that they have a random arrangement or they have an irregular arrangement. No, that's the arrangement. That's not the separation. They're close together but slightly separated. Awesome. So what's the separation? They're close together. और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं but slightly separated. But slightly separated. Done, sir. Okay. Let's move forward. The oxides of nitrogen, such as nitrogen monoxide, are atmospheric pollutants. The exhaust gas, blah, blah, blah. The rate of diffusion of nitrogen dioxide is less than nitrogen monoxide under the same conditions of temperature. Now, you know that diffusion depends on two things. It depends on the temperature and it depends on the MR. That's the only two things that diffusion depends upon, the MR and the temperature. And the examiner is literally telling you that the temperature is constant, same temperature and pressure. So why is nitrogen dioxide, why is the rate of nitrogen dioxide less than nitrogen monoxide? Again, you should know that it should come down to one factor, which is the MR. Let's calculate the MR of nitrogen dioxide. The MR of nitrogen dioxide, nitrogen is 14 plus
oxygen is 16, times it by 2. What do you get? 32 plus 14. 32 plus 14 कितना आता है? हाँ जी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आप बताएं। 46। ओके ग्रेट, 46 AMU। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कितना है? 14 plus 16। which one is fatter? which one is fatter? 46 is fatter or 30 is fatter? which one is more obese? हेल्दी कौन सा है? पाकिस्तान में हम कहते हैं हेल्दी, हेल्दी ज्यादा कौन सा है? 46 वाला हेल्दी है, राइट? सो यू नो दैट बिकॉज इट हैज a higher relative molecular mass, is going to diffuse slower, right? It has a higher relative molecular mass, therefore it's going to diffuse slower because the relative molecular mass is higher. And that's what he's telling you. He's saying the rate of diffusion of nitrogen dioxide is less. Why is it less? Because it has a higher relative molecular mass compared to nitrogen monoxide. So now just explain why the rate of diffusion of nitrogen dioxide is less than nitrogen monoxide. Why, sir? Because nitrogen dioxide has a higher relative molecular mass. Okay, and if it has a higher relative molecular mass, if it has a higher relative molecular mass, पाकिस्तान में तो हेल्दी नहीं, पालवान कहते हैं, चलो ठीक है। सो बिकॉज इट हैज अ हायर रिलेटिव मोलेकुलर मास व्हिच इज, और अगर आप अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन के लिए एम करना चाहते हैं, यू से NO2 हैज अ हायर रिलेटिव मोलेकुलर मास दैट इज 46 compared to NO which is 30। डन। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दिया करें। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस। व्हाई वुड द rate of diffusion decreases as the temperature decreases? Pretty easy. If you decrease the temperature, what should happen to the kinetic energy? Decreasing the temperature means that there's a decrease in kinetic energy of particles, and if there's decrease in kinetic energy of particles, what is kinetic energy from your physics, everybody? kinetic energy from our physics is half mv square, right? So अगर kinetic energy कम हो रही, इसका मतलब है speed of the particles is decreasing, yeah? And if the speed of the particles is decreasing, that means the particles will now move slower, therefore they'll diffuse slower. So you say, hey, NO molecules, decrease in the temperature results in NO molecules having less kinetic energy, due to which the particles, ये थोड़ा सा ड्राई चैप्टर है मुझे पता है, द पार्टिकल्स मूव स्लोअर। डन सर। इसलिए तो वो डिफ्यूजन स्लो करते हैं। अच्छा, ये जो मैं आंसर्स लिख रहा हूँ ना, ये आपको मार्किंग स्कीम में इतने एलैबोरेटेड नहीं नजर आएंगे। मैं आपको सैम्पल आंसर्स लिखवा रहा हूँ कि सोचना कैसे। आई एम बिल्डिंग योर थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिएगा, रट्टे मारने से बेहतर है, ठीक है? इसमें से ऐसे कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा क्लासेस में। डन। अच्छा, oh, this is a beautiful question. This is a very, very, very beautiful question. It says the table shows the melting points, boiling points, and electrical conductivities of 6 substances. Identify substance D, E, F, and G or I, which is a liquid at 25 degrees Celsius. अब देखिए 25 part 1 को देखिए. How do you go about this? Sir, देखिए. Let's suppose this is our 25 degrees Celsius, right? 25 degrees Celsius is effectively your room temperature, and yeah, so that's your 25 degrees Celsius. और मैं कह रहा हूं इधर liquid है. Liquid कैसे बनती है कोई चीज? How does something become liquid? Well, it has to melt, right? So solid to liquid कहीं ना कहीं हुआ होगा और फिर आपके पास liquid बना होगा, right? So it must have melted. Melted का process, इसका मतलब है 25 degrees Celsius should be above the melting point. Ain't that true? 25 degrees Celsius should be above the melting point. That's why you'll end up with a liquid at 25. क्योंकि अगर melting point इधर है, इसका मतलब है इधर 30-40 पे melt हो रहा है, तो it doesn't make sense, right? 25 पे liquid है और melt 40 पे हो रहा है। नहीं, melt पहले होगा and then it'll be a liquid at 25 degrees Celsius, right? So if it's a liquid at 25, you realize that it already has melted, right? So can I safely say that 25 degrees Celsius should be above the melting point, right? मेल्टिंग पॉइंट से तो 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर होना चाहिए। अच्छा, क्या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस शुड बी अबव द मेल्टिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट से भी ये ऊपर होता फिर तो ये लिक्विड ना होता, फिर तो ये गैस होता, राइट? सो 25 डिग्री सेल्सियस शुड बी अबव द मेल्टिंग पॉइंट एंड बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये लिटरली मैं आपको आगे वाले सवालों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं जिसमें वो कहता है कि टेल मी व्हाई
इसमें तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, बाद में पूछेगा क्यों ये लिक्विड है, तो क्यों के लिए क्या कहना है, 25 डिग्री सेल्सियस इज अबव द मेल्टिंग पॉइंट बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई इट्स अ लिक्विड। अब देखिए इसमें अबव द मेल्टिंग पॉइंट और बिलो द बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से छोटा टेम्परेचर देखे तो वो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सो ई छोटा है और एच छोटा है, डन। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, सॉलिड टू लिक्विड, इस टेम्परेचर पे सॉलिड टू लिक्विड हो गया होगा, और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर द लिक्विड वुड हैव चेंज्ड इट्स स्टेट इनटू अ गैस, डन से। तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम आपके पास सिर्फ दो टेम्परेचर। अब आपने बॉइलिंग पॉइंट को भी देखना है, एक जगह पे 79 है विच इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस, सो यस इट मेक्स सेंस, if 79 डिग्री सेल्सियस इज हियर दैट मेक्स टोटल सेंस कि यार वो बॉयल 79 पे होगा, तो 79 से पहले क्या होगा, लिक्विड होगा, 25 पे लिक्विड होगा, क्योंकि वो मेल्ट किधर हो रहा है, -117 पे ये सर मेल्ट हो रहा है, डन सर, मेक सेंस। तो मैं कह सकता हूं कि ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा एच क्यों गलत है, एच में द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट आर बोथ बिलो 25, तो फिर एच के लिए ये गैस होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इधर मैं लिख सकता हूं ई फॉर एलिफेंट, डन। अच्छा, which one is a gas at 25 डिग्री सेल्सियस, अभी हमने बात की H is gonna be a gas at 25 डिग्री सेल्सियस, क्यों, बिकॉज अगर हम देखें हमें 25 डिग्री से अपनी लिए ऐसे ना एक टाइमलाइन बनाया करें, हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए गैस, इसका मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस इज अबव द बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस भी हो गया होगा, एंड इट्स ऑब्वियसली ऑल्सो अबव द मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड सबसे पहले लिक्विड में गया होगा, फिर लिक्विड गैस में गया होगा, दैट्स व्हाई इट्स अ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो इफ आई वर टू सी कि यार मुझे 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस इज शुड बी अबव द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, ओनली देन वुड यू हैव अ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो रट सर कसम से कभी ऐसे नहीं सोचा था, रटा मारा हुआ था इस पे, तो हाँ हाँ अपने लिए टाइमलाइंस बनाए ना एग्जाम में, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो ये बनाने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट आपको पता लगेगा। तो सर दैट्स एच, मेक सेंस। अच्छा, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, अब देखिए सॉलिड चाहिए, अब देखिए तीसरा सॉलिड चाहिए एट 25, डू इट ऑन योर ओन प्लीज, यू नीड अ सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, सॉलिड का मतलब क्या है कि शुड 25 डिग्री सेल्सियस बी अबव द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और बिलो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट बॉयल पहले अगर हो गए फिर तो सॉलिड नहीं होगा ना, अगर मेल्ट हो गया फिर इधर लिक्विड होना चाहिए, अगर बॉयल हो गया बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया फिर तो इधर गैस होना चाहिए। सो 25 डिग्री सेल्सियस शुड इफेक्टिवली बी बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, 25 के बाद कहीं ये मेल्ट होगा तो लिक्विड बनेगा, और फिर कहीं ये बॉयल होगा तो गैस बनेगा, राइट। सो 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा सब्सटेंस देखिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और यू कुड जस्ट 25 डिग्री सेल्सियस के पर्सपेक्टिव से लिखना है 25 डिग्री सेल्सियस शुड बी बिलो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए तो सॉलिड है ना, मेल्ट और बॉयल अभी नहीं हुआ। सर ऑसम लॉजिक्स, मजा आ गया टेकिंग योर सेशन, थैंक्स मैन। यार कसम से आप लोगों को टीचर्स क्या पढ़ाते हो मुझे समझ नहीं आती, ये तो अच्छे मैं सेशन कर लेता हूँ, मैं यार ऑफिस से बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चों के लिए थोड़ा कुछ कर लेते। अच्छा आप देखिए 25 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर होना चाहिए, तो किसका 25 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट ऊपर है, पहले ये शॉर्ट लिस्ट करें अपनी लिए। 25 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट डी कभी ऊपर है, एफ कभी ऊपर है, जी कभी ऊपर है, आई कभी ऊपर है, कोई भी आपके पास हो सकता है, कोई भी आपके पास हो सकता है, डन से। अब ये भी आपके पास D also makes sense because the melting and boiling point is above 25 degrees Celsius. F also makes sense, the melting point and boiling point is above 25 degrees Celsius. G also makes sense, melting and boiling point is above 25 degrees Celsius. I also makes sense, melting point and boiling point is above 25 degrees Celsius. तो आप सवाल को दोबारा पढ़ें, अब सवाल को दोबारा पढ़ें, यार ये तो सारे सेंस बना दे, इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज अबव 20, तो ये तो D भी सॉलिड है एट 25, एफ भी सॉलिड है 25, जी भी सॉलिड है 25, आई भी सॉलिड है, तो आप गौर से पढ़ें, वो कह रहे हैं अ सॉलिड ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सर आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, नो सर, सिंपल मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, they do not conduct electricity in solid state, liquid state, whatever state they are going to be in, they are not conduct electricity, right। simple covalent bonding हुई होती है ना, उसमें covalent bonding हुई होती है, simple covalent molecules बने होते हैं। तो मुझे बताएं जी, जी ऑप्शन सही है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये तो कह रहे हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रोबेबली एक मेटल होगा, सॉलिड स्टेट में मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना, तो इट्स प्रोबेबली गोना बी अ मेटल। सर एफ जो है उसमें भी नो है और आई में भी नो है। अब लिक्विड में देख, वो कह रहे हैं लिक्विड में एफ भी कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता,
और ये भी कह रहा है क्या कहते हैं इसको, जी भी कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, और बाकी आई कह रहे हैं कि लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, विच मींस दैट आई वुड प्रोबेबली, लिक्विड से इनका मतलब है एक्वस, प्रोबेबली लिक्विड से मतलब है एक्वस, तो आई वुड बी एन आयनिक कंपाउंड। डन सर। तो आपके पास इसके अंदर ऑप्शन क्या आ गया, अब देखिएगा, अब और गौर कीजिएगा, मैं आपके अंदर ना वो थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाह रहा हूं, रट्टे नहीं लगा रहा कि बस जी जी आंसर है इसका या एफ। अब सोचिए, दोबारा सोचिए कि यार ये क्या हिसाब किताब बन गया, ये तो एफ भी ऑप्शन हो सकता है और जी भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए ना, ये गलती है, सिर्फ जी होगा आई थिंक, क्यों क्यों आई थिंक, पूछिए अपने आप से, क्यों टीचरों ने रट्टे लगवाए इसलिए नहीं, पूछिए यार एफ भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। अब एफ और जी में फर्क देखिए, एफ का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है 25 से, और जी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई नहीं, एंड इट सेज इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल। सर जनाबे वाला, सिंपल मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन वैन डर वाल फोर्सेस, and that means that they're going to have low melting point and boiling point. तो सर ये 3550 और 4827 फिर क्या चीज है, ये आपके पास जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। यस, वो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, लाइक डायमंड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है, उनका वेरी वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल अगर है, इसका मतलब यही है कि जी इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। तो देखिए मजा आ गया मरियम सिंह सर, मजा आ गया। तो अपने आप से बार बार पूछे, और प्रैक्टिस में स्पेशली अपने आप से बार बार पूछेगा, रट्टे ना मारे एक चीज के, बस ये जी है तो जी है। अब टीचर से पूछे यार जी एफ में दोनों एक ही चीज है। मुझे एक दफा यही सवाल एक बच्चा ला के आया था, और उसके टीचर ने उसका कहा था बेटा इसका मार्किंग स्कीम बताओ, मार्किंग स्कीम उन्होंने देखा, और फिर मार्किंग स्कीम में उन्होंने कहा बेटा हाँ जी है ना, जी है ना, हाँ बस जी है ना हमारे कहा यार मर्जी वाली बात है यार, मजाक बना के रखा हुआ है केमिस्ट्री का और ओ ए लेवल्स का। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ईशल इज सेइंग अमेजिंग, थैंक्स ईशल। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एट रूम, आई एम जस्ट गेटिंग वार्म्ड। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड टू डिस्क्राइब द मोशन एंड सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस। मोशन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, व्हाट इज द मोशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली गैसेस, गैस है, गैस हैज रैंडम मोशन। डन। और अच्छा, रैंडम मोशन सिर्फ नहीं लिखना, रैंडम मोशन एट, गैसेस के लिए हमने क्या कहा था, रैंडम मोशन एट हाई स्पीड्स, दोनों बातें लिखनी, डिस्क्रिप्शन है ना। यस थैंक यू। और सेपरेशन क्या है, गैस पार्टिकल्स कितने सेपरेटेड है आपस में, पार्टिकल सेपरेशन क्या है, दे आर फार एंड अपार्ट, फार एंड, उप्स, एंड, और पूरी बात लिखा करें, सिर्फ फार एंड अपार्ट ना लिखें, ये लिखे पार्टिकल्स आर फार एंड अपार्ट। अच्छा, चूंकि हम चिलिंग पिलिंग सेशन भी साथ साथ करें, तो मैं थोड़ी बहुत बातचीत भी करता रहूंगा आप लोगों से यार। अगर एक चीज आप कॉन्सेप्चुअली करें ना, इफ यू सॉल्व समथिंग कॉन्सेप्चुअली, that one question is better than solving 100 questions. Let me tell you this, genuinely speaking, solving one question conceptually is much better than solving 100 questions by just rote learning the marking schemes. So develop a thought process, develop how to connect things with your lectures, ठीक है, तो चीजों को कनेक्ट करना सीखिएगा। दिस क्वेश्चन इज अबाउट हेलोजेंस एंड हेलोजन कंपाउंड। हेलोजेंस कौन से होते हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा, ये ग्रुप 7 के मॉलिक्यूल्स को हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस इनको क्यों कहते हैं, हेलो का मतलब है सॉल्ट, जेंस मींस मेकर, सो दे बेसिकली मेक सॉल्ट्स व्हेन दे फॉर्म, व्हेन दे रिएक्ट विद ग्रुप 1, राइट। जैसे सोडियम के साथ अगर कोई हेलोजन रिएक्ट करता है तो NaCl बनाता है, नमक बनाता है, या okay. Bromine is a liquid at bromine. Wait. Okay. Bromine is a liquid at room temperature. Describe the arrangement and particle separation. So easy. Arrangement क्या है? Liquids की arrangement क्या है? They have a random arrangement. हाँ, irregular भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि 2022 onwards आपका examiner ज़्यादातर random का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. So particles are randomly arranged, right? So particles have a random arrangement. And what's the particle separation? गला दबा देना है मैंने, गला दबा देना है, गला दबा देना है सच में। मैं क्यों कह रहा हूं सर, नो, सेपरेशन डज नॉट मीन दैट दे स्लाइड ओवर ईच अदर, स्लाइड ओवर ईच अदर इज देयर मोशन। सेपरेशन और मोशन में फर्क करना सीखिए प्लीज। सेपरेशन इज that the particles are close together but slightly separated, thank you very much, or some particles are close together or some particles are touching each other, आपकी मर्जी जैसे कहना है, मैंने तो अपने लेक्चर्स में ऐसे ही पढ़ा है कि particles are close together but slightly separated, motion उसकी है कि they slide over each other, done. So separation क्या है, particles are close together, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है ना, थोड़ी सी लिख लें, आर क्लोज टुगेदर बट स्लाइटली सेपरेटेड। अब देखें, यकीन माने, पिछले हमने कितने सवाल कर लिए हैं,
कितने सवाल कर लिए? ऑलमोस्ट हमने 2 सालों के पेपर कर लिए ना, 2023 की भी सारी कर ली, 22। कोई फर्क था? कोई फर्क था? नहीं, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली चलते, कैम्ब्रिज इज एन इंस्ट्रक्टेड कोर्स पीप्स। तो चीज़ों को सिंपल रखा करें, आसान रखा करें चीज़ों को। डन। The question is about zinc and its compound. Zinc is extracted from its ore, which is mainly iron. Yada 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 yada. State the name of physical change occurring when zinc gas is converted into molten zinc. Okay. What is the name of that physical change? Gas से आप गए किस चीज में? Molten. Molten means liquid. Yeah. What do you call that? That's condensation. Yeah. Simple. Simple as this. अच्छा, कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है? फन फैक्ट, क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन, व्हाट इज कंडेंसेशन पॉइंट? हाँ जी, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको तो पता है। इट इज द बॉइलिंग पॉइंट, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट. You call it the boiling point when you're heating it, and you call it the condensation point when you're cooling it. But Noor is correct. Noor, 100 रुपए नाम मुझे मैसेज कर दीजिएगा. So condensation point is the constant temperature at which a gas changes its state into a liquid. Just like boiling point is the constant temperature at which a liquid changes its state into a gas, right? So their point अगर मैं कहता हूँ तो that's we talking about that constant temperature. Done? It's irrelevant. मैं तो आप लोगों के वो भी साथ साथ कर रहा हूँ ना. आप लोगों के बाकी क्वेरीज भी साथ साथ हम हल कर रहे होते हैं. देखिए, पास पेपर करने का मकसद ये होता है, it's about high to low or low to high. You could say it just Ishil, it just depends whether you're cooling it or heating it. If you're cooling it, you call it the condensation point. If you're heating it, you call it the boiling point. Yeah. अच्छा, um, देखिए, पास पेपर्स करने का मकसद ये होता है ना कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, आपका सिलेबस रिवाइज हो जाए. ये नहीं होता, मुझे तो आता है, मैं तो करता जाऊंगा, लेकिन मेन मकसद, अब जैसे ऊपर सबको इतना मजा आया जब मैंने वो एक सवाल किया, तो थॉट प्रोसेस में आपका डेवलप करना चाह रहा हूँ और आपका सिलेबस रिवाइज करना चाह रहा हूँ, राइट? और वीडियो सोल्यूशन भी बनाना चाह रहा हूँ अपने पास पेपर्स का. अच्छा, कंप्लीट द टेबल यूजिंग टिक्स एंड क्रॉसेस टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ gases, liquids and solids. बताएं जी, gases में particles are touching each other, tick cross. Do particles touch each other? No, sir. Particles are far and apart. That's the particle separation. Sir, gases may particles have a random movement. Do particles have a random movement in gases? Yes, that's the motion of gases. Gases के motion क्या होता है? Gases have a random motion at high speeds. Boom shakalaka. Are gas particles regularly arranged? No, sir. They have a random arrangement. Liquid को देखिए. Liquid particles are touching each other. Yes, touching. हमने कहा है close together. हमने कहा है close together. They do touch each other. तो boom shakalaka. Right? Particles have a random movement? Absolutely, right? They slide over each other randomly. Boom, boom, boom. Particles are regularly arranged. Particles of a liquid are randomly arranged. They have irregular arrangement, right? Because you can't see a pattern. You can't see a pattern. हमने उसको देखा था ना, pictures हमने उसके देखे थे. That's across Serino. Solid particles are touching? Absolutely, they are tightly packed. Particles have a random movement. Particles have a random movement. No, sir, they don't move. They don't move. They vibrate about a fixed position. They don't move. Solids, particles are regularly arranged. Absolutely. That's why you call it a lattice. Substances can change state. Boiling and evaporation are two ways liquid changes into a gas. Done? Describe two differences between boiling and evaporation. There are so many differences, yaar. पहला difference, boiling occurs at a specific temperature. जैसे अगर मैं H2O को boil करूं तो 100 degree Celsius पे H2O boil होगा. But if I talk about evaporation for H2O, it occurs at any temperature, right? So boiling occurs at a specific temperature. अच्छा, या आप बॉइलिंग की पर्सपेक्टिव से लिख लें और या आप इवेपोरेशन के पर्सपेक्टिव से लिख लें, बस एक लिखा करें. बॉइलिंग अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वेयर एज इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर. ये वेयर एज लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं लिख लें, लेकिन एक चीज की पर्सपेक्टिव से लिखा करें. डन. अच्छा, बॉइलिंग में आपको पता है बबल्स होती हैं, evaporation में bubbles नहीं होती. अच्छा, आपको कैसे पता कि evaporation occurs at any temperature? Literally, when you take a shower, you come outside and you don't even use the wiper in your washroom to to take the water to the proper drainage channels. तो आप वॉशरूम से शावर होके निकल आ जाते हैं और अम्मी आपको चीखे मारते हैं, पानी में वॉशरूम में वाइपर मारो. लेकिन अगर आप वो नहीं भी मारते तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद या कुछ घंटों बाद वो पानी इवेपोरेट हो जाता है. ये तो नहीं ना पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी वॉशरूम में, नहीं ना. evaporation occurs at any temperature. It may occur slow or quicker depending on whether the weather is cold or hot, but it will evaporate eventually. Yes, and yes. So boiling has bubbles. Done, sir?
Boiling has bubbles whereas evaporations have no bubble. तीसरा बिल्कुल सही, बिल्कुल आप लिख सकते हैं evaporation. Boiling takes place throughout the liquid. Boiling takes place throughout the liquid, whereas evaporation takes place only at the surface level, only at the surface molecules. Done. और ये भी लिख सकते हैं बॉइलिंग के लिए यू नीड एन एनर्जी सोर्स. बाकी आपकी मर्जी, जितना लिखना चाहे, जितना गुड़ डालते हो उतना मीठा होता जाएगा, राइट. बॉइलिंग के लिए एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड है, राइट. यू नीड अ चूल्हा, यू नीड सर्टेन, नो, नॉट एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एनर्जी एवापोरेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एवापोरेशन अपनी एनर्जी सराउंडिंग से ले रहा होता है. बॉइलिंग बिकॉज उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, यू नीड टू हैव ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स. सर, डू वी हैव टू गिव अल्टरनेटिव आंसर ऑफ एवापोरेशन? हरीम, आई जस्ट सेड नो. नो यू डोंट. No, you don't. You either talk from the perspective of boiling or you talk from the perspective of evaporation. No, you don't. Done? Name the change of state when a gas becomes liquid. बताएं जी. When a gas becomes liquid, what is that change of state called? Gas से liquid को क्या क्या होता है वो change of state? That's condensation. A solid becomes a gas. Solid becomes a gas. Sir, ये basically what is it trying to indicate? It's trying to indicate sublimation. Sublimation क्या होती है? Sublimation is the process where a solid converts into a gas without converting into a liquid first. Please ये याद रखिएगा, sublimation में liquid का phase आता ही नहीं है. ठीक है? So that's basically sublimation. हालांकि इसको clarify करना चाहिए था, but कैम्ब्रिज का एग्जामिनर समझता है कि आप इतना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते. डन. ओके. A substance boils at temperature x and melts at, अच्छा तो x पे boil होता है. अच्छा, इसका ये कूलिंग कर्व है कि हीटिंग कर्व है? ये कूलिंग कर्व है कि हीटिंग कर्व है, मुझे बताएं. कूलिंग कर्व, हीटिंग कर्व. Is this a cooling curve or a heating curve? Obviously, it's a cooling curve. Why? Because it is showing you how the temperature changes as the substance is cooled down. Now, he's saying that a substance boils at temperature x, which means temperature x is the boiling point. But remember, because you're cooling it, you can also call it the condensation point. And the better word for calling it would be the condensation point, which will be the constant temperature at which this gas is going to change its state into a liquid, right? So after all the gas changes its state into a liquid, only then will the temperature start to decrease up until y. Because y, he's saying, is the temperature at which it'll melt, right? But because you're cooling it, you don't call it the melting point. What do I call it? You call it the freezing point, right? Freezing point, melting point, exact same thing. Just the difference is, what is the difference? The difference is just whether you're cooling it or heating it. If you're heating it, you call it the melting point. If you're cooling it, you call it the freezing point, right? So at y, it'll start to freeze, right? Which means that the temperature will become constant. अच्छा, मेरा सवाल है, why is the temperature constant? Why is the temperature constant when a liquid changes its state into a solid? And then you'd have a solid right here in this phase of it. Why is the temperature constant? हाँ जी बोले. सिलेबस में है, हाँ, मैंने पढ़ाया तो वो है सर, लेकिन हमारी टीचर ने नहीं पढ़ाया. बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? Wrong, Noor. Noor is saying heat is used to break the intermolecular force of attraction. Wrong. Salahuddin, wrong. Heat is used to break the bonds. Wrong. इसमें तो heat है ही नहीं, आप cool कर रहे हो. Heating का वो तो तब होता है if you would heat it, right? If you were to heat it, then you'd say that the temperature is constant because the heat energy is not used to raise the temperature. Rather, it is used to overcome the intermolecular force of attraction or to break the bonds or to overcome the bonds, जिसको हम gluing force कह रहे होते थे, right? And वही latent heat होता था जो आप physics में पढ़ते. Latent का मतलब ही होता है hidden heat, right? The energy is used to make the bonds. Wrong. No. I said that the reason the temperature is constant is because when a gas changes its state into a liquid, it releases heat. जिन्होंने chemical energetics पढ़ा हुआ है उनको पता है कि ये एक exothermic reaction है. So this releases heat, right? So at one end you're cooling it, and at the other end, when the state is changing, it is releasing heat, right? So the heat released by this change of state balances the cooling effect, right? So the heat released, ये आज तक नहीं टेस्ट हुआ और टेस्ट हो सकता है, सिलेबस में है, सिलेबस खोल के देखें. So the heat release balances the cooling effect or balances the cooling, therefore temperature is constant. सर देखें ना, मैंने बताया तो था. और सिमिलरली इधर भी, when liquid changes its state into a solid, this releases heat, जिसको आप एक्सो कहते हैं, एक्सोथर्मिक. वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, मेरे स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था. दिस रिलीजेस हीट,
दिस रिलीजेस हीट एनर्जी व्हिच बैलेंसेस द, एक तरफ से आप कूल कर रहे हैं, एक तरफ से वो आपको हीट दे रहा है, कूल हीट, दे बोथ बैलेंस ईच अदर। एक दफा रिपीट कर दे जी, मैं तो इसीलिए बैठा हुआ हूँ रिपीट करने के लिए। बेटा रिकॉर्डिंग देखें, आपके पास पोर्टल का एक्सेस है, दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग देखिए, हीटिंग कूलिंग कर्व का लेक्चर खोलें और ये दोबारा से देखिएगा। अच्छा आगे बढ़े। अच्छा इसने मांगा क्या हुआ था, मैं तो चुगल चुगल में बना दिया। कंप्लीट द ग्राफ टू शो द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर सब्सटेंस एज इट कूल्स फ्रॉम ए टू बी। मैं ठीक है, ए टू बी के लिए ये ग्राफ कंप्लीट किया, एक ये इस एक लाइन का ये मार्क है, एक मार्क। अच्छा मेक श्योर दैट दिस इज रूलर बना के ये बनाना है, राइट, कि आपको पता लगे कि इधर इधर आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, और फिर इसके नीचे कम बने। Done, sir. The elements shown are gases at room temperature and pressure. When separate samples of each gas, एक second. When separate samples of each of these gases are placed in a container, they will diffuse. Why will these gases diffuse? Gases क्यों diffuse होते हैं? Why do gases diffuse? डिफ्यूजन क्यों होता है? मैंने आपको बताया था शुरू में, वो चीज की एग्जांपल दी थी कि चीज के ऊपर एक लिड लिड रखें तो वो डिफ्यूज नहीं होगा, लेकिन जैसे आप लिड हटाते हैं, बिकॉज द गैसेस हैव ए रैंडम मोशन, दे मूव रैंडमली एट हाई स्पीड्स, वंस यू रिमूव दैट लिड, the all the cheese, the rotten cheese smell is going to spread everywhere, right? So you need to understand that the reason why gases diffuse is because of their random motion. That is why liquids also diffuse, but solids don't diffuse because they don't move, they vibrate about a fixed position. Sir, this question in past paper they also asked which gas is green. How do we know which gas is green? बेटा इन तीनों में से ना ग्रीन गैस, हाइड्रोजन का कोई रंग नहीं होता, नाइट्रोजन का कोई रंग नहीं होता, ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता। वैसे तो इधर ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, कभी आपने हाइड्रोजन देखा है? देखा होगा लेबोरेटरीज में, कोई रंग नहीं होता। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आसमान में है, तो आप थोड़ा अकल इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर आसमान में है, आपको कोई ग्रीननेस नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है ना। योर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ different gases like 78% nitrogen 21% oxygen, तो कोई ग्रीननेस तो नहीं नजर आ रही है। रह गया पीछे क्लोरीन, सर्कल कर लेते। क्लोरीन इज अ पेल येलो ग्रीन गैस। तो मतलब कभी कभार अगर आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट, अगर आपको आंसर नहीं चीज का पता लगता तो, और ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर किसी चीज का आंसर नहीं है तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आपके सामने है एटमोस्फेयर में, तो उसका कोई ग्रीन कलर तो नहीं है ना, और हाइड्रोजन का भी नहीं होता। हाइड्रोजन और क्लोरीन में तुक्का लगा लेते डिस्क व्हेन, तो 50% प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाती सही करने की। सो डिस्क्राइब व्हाई दिस गैसेस डिफ्यूज, बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स, बिकॉज gas particles, because of the random motion of gas particles, motion of gas particles। अच्छा जब आप थकते जाएंगे ना मुझे बताते जाएं ताकि हम उधर बंद कर दें। स्टेट विच ऑफ दीज फोर गैसेस हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगेन हैव दे टॉक्ड अबाउट टेम्परेचर? No, sir. But they've even told you that the temperature, they're all at room temperature, right? Which means that the temperature is constant. So what other factor determines the rate of diffusion? दो factors हैं बस आपके कोर्स में, temperature and MR. So if the temperature, if they are all at room temperature, what would be dictating their MR? Sorry, what would be dictating their diffusion at the rate at which they diffuse? That's obviously the relative molecular mass. कौन सा मोटा है, कौन सा नहीं? तो hydrogen is H2, sir. Nitrogen is N2, oxygen is O2, chlorine is Cl2. बताएं जी, हाइड्रोजन का relative molecular mass 1 times 2, that's 2, sir. 1 times 2 gives me 2. सर नाइट्रोजन 14 एक है, दो नाइट्रोजन आपके पास मौजूद होते हैं, दैट्स 28, दे आर डायटोमिक। ऑक्सीजन 16 times 2, दैट 32। सर क्लोरीन 35.5 times 2, सबसे मोटा एक क्लोरीन है सर। और वो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ दीज डिफ्यूजन हैव द हाईएस्ट रेट, विच ऑफ दीज गैसेस हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कौन सबसे तेजी से डिफ्यूज करेगा, जो सबसे एथलेटिक हो, जो सबसे कम मोटा हो। विच वन इज कम मोटा? Which one has the lowest relative molecular mass? That's your hydrogen. So guess what? Hydrogen. Explanation. What's the explanation? Because it has the lowest relative molecular mass. It has the lowest relative molecular mass. ब्रैकेट में MR लिख लेता हूँ, दैट इज 2, अगर थोड़ा एफिशिएंट होना है। डन सर, आगे बढ़ूं। Ah, this question is about elements of group 4 in the periodic table. The table shows some properties of group 4 elements. Who cares? Nobody cares. Predict the density of tin. अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, predict the density of tin.
ये 2 है, ये 5 है, ये 11 है। इसका मतलब है 10 शुड बी समवेयर बिटवीन 5.35 एंड 11.34। कोई भी इन दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आपकी मर्जी, दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू, बट मेक श्योर इट्स इन द मिडल, राइट। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपका आंसर कभी गलत ना हो, तो आप ऐसे किया करें कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया करें, इन दोनों को ऐड करें और डिवाइड बाय 2, एक एवरेज आ जाएगी आपके पास। निकालें क्या आता है, इन दोनों ऐड को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें, क्या आ रहा है। आपकी मर्जी है, लेकिन इफ लॉजिकल सवाल है ये, मतलब 5.35 और 11.34, तो मतलब फर्क कोई 3 की एडिशन कर लेना, 2 से 5 में गए तो 3 की एडिशन हुए, तो 5 में 3 की एडिशन कर दें वो जैसे, आपकी मर्जी है। 8.34, बट ठीक है 8.34 लिख लें, आपकी मर्जी। आपके एग्जामिनर आपको लेवरेज देता है, वो कहता है 5.40 से लेके 11 तक बच्चा जो भी लिखे ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है यार, मुफ्त के मार्क्स है। अच्छा, क्या अगर मैं इधर 11 लिखूं तो मुझे मार्क मिल जाएगा? क्या अगर इधर मैं 11 लिखूं तो मुझे मार्क मिल जाएगा? याद रखें, बी क्वेश्चन स्पेसिफिक, मार्क शायद आपको मिल जाए, लेकिन दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ डिस्टिंक्शन स्टूडेंट फ्रॉम एन ए स्टार स्टूडेंट। ए स्टार स्टूडेंट गलती से 11 लिख लेता है और डिस्टिंक्शन लिखा होता है 11.00। देखें, इधर आपको ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस में, ये भी 2 डेसिमल, ये भी 2 डेसिमल, तो आप अपना आंसर भी 2 डेसिमल में ही लिखें, ठीक है। तो प्रिडिक्ट द डेंसिटी 8.34 लिख लूंगा। सर डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। ट्रेंड क्या है यार, ये मतलब इंग्लिश के सवाल है। ट्रेंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना, कार्बन आता है फिर सिलिकॉन, आप कार्बन से नीचे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और डिक्रीजेस, डिक्रीजेस जाहिर सी बात है कम हो रही है। सो द जनरल ट्रेंड बॉइलिंग, द बॉइलिंग पॉइंट्स decreases डाउन द ग्रुप। और आप ये भी लिख सकते थे द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप द ग्रुप, आपकी मर्जी। अच्छा, कोई बच्चा ना ऐसे करेगा, ओ ये कम हो रहा है, कम, ओ ये तो ज्यादा हो रहा है, तो फिर मैं लिखूंगा डिक्रीज एंड इंक्रीजेस नहीं, बिकॉज इसे जनरल ट्रेंड बताए। हाँ, ये अगर 2 मार्क का सवाल होता और वो कहता है डिस्क्राइब द ट्रेंड इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर ये 2 मार्क का सवाल पूछता। देखिए, अंग्रेजी को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कह रहे हैं डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड, जनरली क्या हो रहा है, जनरली तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर वो सिर्फ कहता डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट एज यू गो डाउन द ग्रुप, और ये फिर 2 मार्क का सवाल पूछता, क्यों? क्योंकि आप कहते हैं जनरली, आप फिर कैसे जवाब देते हैं, द जनरल ट्रेंड इज दैट द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाउएवर इट इंक्रीजेस फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम। तो 2 मार्क, 1 मार्क आपको ये मिलता, हाउएवर इट इंक्रीजेस फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम, और 1 मार्क जनरल ट्रेंड का मिलता। तो पास पेपर कराने का मकसद ये कि आपको मैं सवाल पढ़ना सिखाऊं। डन। प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ सिलिकॉन एट 1600 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा। अगेन, whenever you are asked for a physical state, एक लाइन अपने लिए बनाकर और 1600 पे मांगा है, 1600 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट मांगा है। अब देखें इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट इज 1410 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 2355। अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर है, तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप इसको प्लॉट करें 1410 और 2355। तो 1410 1600 से कम है, और ये क्या है, 2355 1600 से ज्यादा है। डन। This is the melting point, which means solid change होगा liquid पे at this constant temperature, and 2355 is the boiling point, which means the liquid is going to change its state into a gas at this constant temperature. अब मुझे बताएं 1600 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। देखें, 1600 डिग्री सेल्सियस is above the melting point, so it should be, it can be a liquid and or a gas, but it's below the boiling point. So above the melting point liquid होगा जनाबे वाला, but below the boiling point से कम है तो अभी गैस नहीं हुआ, above the melting point मतलब लिक्विड है। सर तो 1600 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, लिक्विड। क्यों? वो कह रहे गिव योर रीजन। ऊपर नहीं बताया था, 2 मार्क का रीजन भी पूछा है, जिसने सिर्फ लिक्विड लिखा 1 मार्क, 1 मार्क। और अच्छा, 1 मार्क का सवाल है, जिसने सिर्फ लिक्विड लिखा 0 मार्क। ये मजे की बातें होती हैं, तो ये चीजों को एनालाइज करना सीखे। सो प्रिडिक्ट एंड गिव अ रीजन। सो इट इज अ लिक्विड, 0 मार्क, इट इज अ लिक्विड पे 0 मार्क। रीजन बताएं, बिकॉज 1600 डिग्री सेल्सियस इज अबव द मेल्टिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लेता हूं 1410, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। 0.5 का कॉन्सेप्ट नहीं होता किडो ओ लेवल आईजीसीसी में, 0 मार्क मिलेगा। डन।
सर काश आपके बारे में मुझे पहले पता लगता, तो मैं आपका अभी सेशन, ओके चलो, कोई नहीं यार, अभी भी बहुत टाइम है, आप अभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे हैं, और अभी तो हमने सिर्फ 4 चैप्टर्स किए हैं। अगेन प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ एंटीमनी, बताएं जी, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें, या 5 या 9 में से कोई बीच का नंबर लिख लें, 7 लिख लूँ, ठीक है, 7 लिख लूँ, 7.00, 7.0, अच्छा अगर सिर्फ 7 लिखूं तो बस यही फर्क होगा डिस्टिंक्शन और ए स्टार की स्टूडेंट के बीच में, क्यों, इधर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है, इधर भी 2 डेसिमल प्लेसेस, इधर भी 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको भी चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें ना। सजेस्ट व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आर्सेनिक। अच्छा अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, ये लिटरली ये कोई चैप्टर का सवाल नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है ये वाले। सर क्यों डिफिकल्ट है एंटीमनी का, आर्सेनिक का, सॉरी आर्सेनिक का क्यों डिफिकल्ट है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि देखिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम -210 to 44, फिर इधर भी जाके ये इंक्रीज है और फिर इधर जाके डिक्रीज है। सो आई डोंट नो 44 से कितना बढ़ेगा या कम होगा या ज्यादा होगा, बिकॉज देयर इज नो जनरल ट्रेंड, देयर इज नो ट्रेंड, इंक्रीज हो रहा है और इन दोनों का डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे तो नहीं पता लग रहा, आई डोंट हैव एनी जनरल ट्रेंड। सो सर सजेस्ट, और सजेस्ट का मतलब भी होता है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, सजेस्ट का मतलब होता है कि आपका आपने शायद ये कोर्स में ना पढ़ा हो, बट आई हैव गिवन यू सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन दैट यू कैन डिराइव योर कंक्लूजन। तो सजेस्ट का मतलब है क्वेश्चन को देख के जरा दिमाग इस्तेमाल करो और मुझे बताओ आपको दिमाग में क्या आ रहा है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यार देयर इज नो ट्रेंड डाउन द ग्रुप, मुझे ट्रेंड तो नहीं नजर आ रहा, इधर से इंक्रीज हो रहा है और फिर एकदम से डिक्रीज हो रहा है, सो देयर इज नो ट्रेंड, देयर इज नो ट्रेंड, नो ट्रेंड लिखूं सिर्फ, देयर इज नो ट्रेंड डाउन द ग्रुप, या ये आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ तक। अच्छा इसको गौर किया करें, अगर ये ऊपर बिस्मथ होता और नीचे नाइट्रोजन होता तो फिर देन यू वुड से देयर इज नो ट्रेंड अप द ग्रुप, डाउन द ग्रुप भी फिर भी कह सकते थे, ठीक है, देयर इज नो ट्रेंड डाउन द ग्रुप टू डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आर्सेनिक। डन, मजा आ रहा है। ओके, potassium reacts with chlorine to form KCl, blue blah blue blah blue blah, deduce the physical state of chlorine at -75 डिग्री। अब 2 मार्क है, देख रहे हैं मजा आ रहा है कि नहीं, -75 और डेटा इस्तेमाल कर, सर 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 बनाए 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 बनाए, ये बनाए, ये बनाए, मजे का मजे का मजे का मजे का बनाए, दिस इज -75 डिग्री, इस पे देखना है क्लोरीन मनहूस क्या होता है -75 डिग्री से। ओके, क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, -101, -101, -101 का क्या मतलब है, क्लोरीन मेल्ट्स एट -1, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड चेंजेस स्टेट इन द लिक्विड। डन, तो इसका मतलब है -101 पे ये लिक्विड हो गया होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, -75 पे भी प्रोबेबली लिक्विड। अब -35, -35 75 से पहले आता है कि 75 के बाद में आता है, बाद में आता है ना, माइनस में उल्टा आप चल रहे होते हैं, -35 इज राइट हियर, और फिर आप इधर जीरो के करीब पहुंच जाते हैं, राइट। सो -35 इज द बॉइलिंग पॉइंट, का मतलब है लिक्विड टू गैस होता है, इज द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड चेंजेस स्टेट इनटू अ गैस। डन। अच्छा अच्छा मुझे बताएं, सॉलिड टू लिक्विड मेल्ट हो गया -101 पे, अब टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, बढ़ाने का मतलब क्या है, गर्मी हो रही है, गर्मी, जैसे आपने कनाडा में नहीं देखा -30 हो गया, तो अगर गर्मी हो रही होगी तो क्या होगा, -30 से टेम्परेचर वापस जीरो की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सो अब गर्मी हो रही हो रही हो रही, -75 पे आ गया, -75 इज अबव द मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब है लिक्विड है बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, सो दैट्स व्हाई इट्स गोना बी अ लिक्विड। व्हाई इज इट गोना बी अ लिक्विड, बोलिएगा बोलिएगा, व्हाई इज इट गोना बी अ लिक्विड, इट्स अ लिक्विड, व्हाई liquid, why, because -75 degrees Celsius is above the melting point, but दोनों बातें लिखनी है, बट क्या ये मैंने कराया 100%, बट बिलो द बॉइलिंग। और मैंने आपको इसके एक एडवांस वर्जन भी कराया था, अगर आप क्लास खोल के देख लें तो मैंने ना एक और वर्जन कराया था जो कि जिसमें हम सिर्फ एक एस्पेक्ट डिस्कस करते थे, डिड्यूस द। अब देखें यार कसम खुदा की रिपीट होते हैं, 3 साल हम कर चुके हैं, 2023 से शुरू होते हैं, उसमें ओ लेवल के भी सवाल हैं और आईजीसीएसई के भी, दोनों हैं, दोनों मैंने हर वेरिएंट का हर सवाल पिक किया है इस टॉपिकल में, ठीक है, तो आपको किसी टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यार पिछले 3 सालों के हमने हर वेरिएंट कर लिया, तकरीबन हर दफा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इंस्ट्रक्टेड कोर्स है, वो कोर्स से बाहर नहीं निकल सकता। अब वो कह रहे हैं -195 पे डिड्यूस करे फिजिकल स्टेट फ्लोरीन का, बताएं जी, लेट्स सपोज दिस इज -195, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, -220, -220 is the melting point, so it means that it is the constant temperature at which a solid changes its state into liquid, और -188, -188 195 के बाद ही आएगा ना,
-188, गर्मी हो रही है, गर्मी ऐसे सोचिए, गर्मी हो रही है, कनाडा में बैठे हैं, -30 और 22 तक गर्मी हो रही है, तो जितना आप जीरो के करीब आते जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना। माइनस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इज द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड चेंजेस स्टेट इनटू गैस। नाउ -195 पे क्या होगा? इट्स ऑब्वियसली गोना बी अ लिक्विड बिकॉज -195 डिग्री सेल्सियस इज अबव द मेल्टिंग पॉइंट बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, सो इट्स अ लिक्विड। मतलब क्लोरीन की जगह फ्लोरीन कर दिया और पिछले साल में ये पूछा, अगले साल ये पूछ लिया। मतलब पिछले साल फ्लोरीन पूछा था, अगले साल क्लोरीन पूछ दिया। मजाक बनाया हुआ है कैम्ब्रिज ने। दैट्स व्हाई आई नो लॉन्गर लाइक द कैम्ब्रिज टेस्टिंग मेथड, सॉरी कैम्ब्रिज, बट पियर्सन एंड एक्सेल इज डूइंग मच बेटर इन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स। सर -195 डिग्री सेल्सियस जो है वो ग्रेटर, क्या वो ग्रेटर नहीं, नहीं ना यार, नेगेटिव की बात करें ना। 195 188 से ग्रेटर है, लेकिन नेगेटिव में तो 195 188 से कम है ना। नेगेटिव में ऐसे सोचा करें कि नेगेटिव में सब कुछ उल्टा होता है, राइट? सो -220 इज लेस देन -195 विच इज लेस देन 188। उल्टा सोचें। वैसे क्या होता कि 220 इज ग्रेटर देन 195 एंड देन 188, उल्टा सोचें, डन। सो इट्स अ लिक्विड बिकॉज -195 डिग्री सेल्सियस इज अबव द मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब है लिक्विड बन चुका है, लेकिन गैस अभी तक नहीं बना सर, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। सर शुड आई रजिस्टर फॉर सीआई और एडएक्सएल? सीआई, एनएस, एनएस सीआई, सीआई की रिकग्निशन ज़्यादा बेहतर है। सर हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आर्गन, कैलकुलेट द मास ऑफ नियॉन इन, ये मोल्स का सवाल है, मोल्स में हमने किया भी हुआ है। ये गलती से इधर, ये फर्स्ट एडिशन है ना बुक की, तो थोड़ी सी इसमें अरेंजमेंट के थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, तो चिल चिल चिल, ओके। द टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सर पहले मोल्स फाइंड करेंगे, गोली मारो मोल्स को भाई, मोल्स का सवाल है, मोल्स में हमने ऐसे करोड़ों सवाल किए हैं, गोली मारे। हम चैप्टर 1 कर रहे हैं सिर्फ। ऑक्सीजन, अच्छा गाइस, आर यू एंजॉयिंग इट कि नहीं? मैं एम ही लगा हुआ हूँ अपने साथ गप्पे मार रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, मैं ऑफिस से आया हूँ, मेरी हड्डी पसली एक हुई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जितना हो सके मेहनत करूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट टीचर्स शुड डू। 9 तक क्लास होगी, 9 तक नहीं, ज़्यादा कर लेंगे। सर आई एम गोना रजिस्टर फॉर योर, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यार मेरे सेशन के लिए रजिस्टर करने से मुझे कोई फायदा नहीं, मैं पहले बड़े पैसे कमाता हूँ। आपको फायदा है, कर लें, ठीक है। दैट्स ऑसम, आई एम ग्लैड दैट यू आर एंजॉयिंग इट, आई एम ग्लैड। अच्छा करता रहूँ सवाल कि नहीं, खत्म, बस? बस करूँ कि बस 9 तक करूँ? 9 तक करूँ? यार जरा मैं देखूँ। अच्छा ये आखिरी सवाल है, 2021 का आखिरी सवाल है, ये कर लें, फिर उसके बाद 2020 शुरू होता है ना, फिर थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, फिर हम गाने गाते हैं, 2-3 मिनट गाने गा लेंगे, 9 बजे तक गाने गाते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन, सल्फर, ब्लू ब्ला ब्लू ब्ला ब्लू ब्ला। अच्छा अच्छा, मैं ये ब्लू ब्ला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सवाल 1000 दफ़ा पढ़े हुए हैं, आपने सवाल पूरा पढ़ना है। अब देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि दिस होल्ड्स नो रेलिवेंस आखिर में, क्योंकि ना मैंने हर सवाल अपने खुद हाथ से उठा के डाला हुआ है चैप्टर वाइज, तो मुझे पता है कि ऊपर मैंने सारी बकवास लिखी है, असल सवाल ये है, ये पार्ट ई है, और इसका ई का 1 में द टेम्परेचर ऑफ दिस सैंपल इज डिक्रीज, ये एक सैंपल था ऑक्सीजन का, और this was at room temperature and pressure, 11.5 liters, decimeter cube is just a British English for liters, it's just a fancy way of saying liters, right? तो 11.5 लीटर है आपके पास। the temperature of this sample is decreased, टेम्परेचर कम होने से क्या होता है? अगर ये बात वो ना भी लिखता है ना, तो आपको पता है कि एक चीज हम एट अ टाइम देखते हैं, अगर ना भी लिखता तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन उसने और भी क्लैरिफाई कर दिया कि द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होता है बताएं जी? टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं, ये थे, ये 11.5 लीटर का मवाद पड़ा था इसके पास, और जाने वाला उसने टेम्परेचर उसका कम की, तो टेम्परेचर कम होने से क्या होता है बताएं जी? व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर? आई विल किल यू। सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर गो स्टेप बाय स्टेप, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर रिजल्ट्स इन ए डिक्रीज इन व्हाट? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। भाई आप इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हम इधर स्टेट चेंज की बात करें? आर वी अबाउट टू स्टेट चेंज द स्टेट? नो, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑन वॉल्यूम, what impact would it have on the volume of gas? So decreasing the temperature decreases the kinetic energy, please step by step चले। decrease the temperature decreases the kinetic energy of particles, और kinetic energy कम होने का क्या मतलब है?
Kinetic energy in your physics, you know that it's half mv squared. So the speed is actually decreasing, right? So, and what should happen to the volume? So if the speed is decreasing, the particles are gonna move slower and closer together. So the volume is gonna decrease, right? पहले ये तेज तेज घूम रहे थे, एक अफगानिस्तान में था, एक जो है ऑस्ट्रेलिया में था, एक किधर था. But now that you've decreased the temperature, you're effectively decreasing their energy. So if their energy is decreasing, they'll start to move slower and closer together, और निक्के निक्के volume कम हो जाएगा, right? So describe and explain what happens. Decrease in temperature decreases. There is a decrease in kinetic energy of particles. उसने ऊपर लिखा हुआ है decrease in temperature, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. There is a decrease in kinetic energy of particles. इसलिए मैं कहता हूँ, और then particles move slower, due to which particles move slower and closer together. Therefore, वो कह रहे what happens to the volume. उसने ये नहीं बताया कि the volume decreases. उसने कहा था what happens. तो आपने बताना भी है कि volume को क्या हो रहा है. Therefore, the volume decreases. 2 मार्क. 2 मार्क का सवाल था, लेकिन इसने 1 मार्क दिए. इसका मतलब है अगर आपने सिर्फ ये लिखा हो या सिर्फ वॉल्यूम डिक्रीज में लिखा हो तो शून्य, सिफर, 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 अंडा. एग्जामिनर में अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम खोल के देखें ना, वो उसने लिखा होगा कि पार्टिकल्स मूव स्लोअर, और उसमें उसने लिखा होगा एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो तब 1 मार्क मिलेगा, वरना 0. डन. द प्रेशर ऑफ द सैंपल इज डिक्रीज. अब देखिए, पहले पिस्टन, लेट्स सपोज पहले 11.5 लीटर की बोतल थी, और इतना, द पिस्टन वाज पुश्ड लाइक दिस, राइट, एक सिरिंज था, लेट्स सपोज, राइट. और अब आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब है यू पुश द पिस्टन आउटवर्ड्स. तो डिक्रीज इन द प्रेशर, देखो किनेटिक पार्टिकल, टेल मी व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल. अभी ऊपर ऐसे हमने 10 सवाल किए हैं ऊपर शुरू में, तो पिछले सवालों में यही बार बार टेस्ट होगा. फ्लोरीन की जगह क्लोरीन कह देगा, आयोडीन की जगह ब्रोमीन कह देगा. घबराना नहीं है भाई. तो व्हाट शुड हैपन? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द प्रेशर मींस व्हाट? किसी ने मुझे ये कह दिया ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैंने गला दबाने, वो फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में लिखो. मुझे इधर बताओ पार्टिकल को क्या होगा. सो डिक्रीजिंग द प्रेशर मींस दैट द पार्टिकल्स विल मूव फर्दर अपार्ट. पार्टिकल्स पहले करीब करीब थे ना. नहीं ना, ना डायरेक्ट नहीं लिखना कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं ना. पार्टिकल्स का भी तो बताओ वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स विल मूव फर्दर अपार्ट. प्लीज, दोनों बातें, दोनों बातें. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम. डिस्क्राइब करो कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सप्लेन भी करो क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज नाउ द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट. प्लीज, दोनों बातें, दोनों बातें, प्लीज. सो पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट. देखो खुद भी कह रहे हैं पार्टिकल्स की एक्सप्लेनेशन दो मुझे. ड्यू टू विच, इसीलिए इस चैप्टर में बच्चे मार खाते हैं, हालांकि ये सबसे आसान सबको लगता है. ड्यू टू विच द पार्टिकल्स, सॉरी, ड्यू टू विच द वॉल्यूम इंक्रीज. खलास. 2021 तक हो गए सवाल, और कितने रहते? ओ यार, ये तो बहुत लंबा रहता है यार. यू आर वेरी ग्रेट बाचा, यू आर वेरी नाइस बाचा, ये तो बहुत लंबा रहता है. ओए होए होए मनूस, बहुत लंबा है. अच्छा अच्छा, ये तो पूरी बुकलेट है. अच्छा अच्छा, कुछ कम रहता है. चलो बाकी किसी और दिन कल कर लेंगे. कल टाइम मिला है. ये फ्री सेशंस होंगे, ये असल में ना मैं खुद भी एक रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ ना, अपनी वीडियो सॉल्यूशंस बना रहा हूँ, तो ये फ्री सेशंस होंगे. यार आजकल कौन सा गाना आप लोग सुन रहे हो यार? मैं आजकल आई एम जस्ट लाइक यू नो, आई एम करंटली. सर अगला सेशन का कब होगा? अगर कल मैं ऑफिस से जल्दी आ गया तो कल ही होगा. हमारी लाइव क्लासेस तो अब फ्राइडे सैटरडे संडे को शिफ्ट हो गई ना, तो अगर कल मैं ऑफिस से जल्दी आया तो कल कर लेंगे. आजकल मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ, बड़ा मजे का गाना है यार. यूट्यूब मुझे कॉपीराइट ना कर, भाई यूट्यूब पे कौन से मेरे 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स है कि कॉपीराइट होऊंगा. ये गाना है आजकल. हाँ. इशारों इशारों में दिल देने वालों, यही है, ऐसी है. मैं अपनी शक्ल तो देखूं. ओह यार, मेरी आंखें ना, आई नाउ हैव रेकून आईज, आई स्वेयर टू गॉड, लाइक आई एम जस्ट कुक्ड, आई एम कुक्ड. सर कौन तन्हा सुने. अब चश्मे पहन लेते हैं वापस यार. असल में चश्मे में मैं जो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ ना, तो चश्मे में उसकी रिफ्लेक्शन आ रही होती, फिर आप लोग मेरे चश्मों में देख रहे होते बजाय ये कि आप स्क्रीन को देख रहे हो. एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर गाइस? मजा आया आज की क्लास में? इशारों इशारों यूट्यूब पे अपलोड हो जाए. तैयबा मजा आया? यस. सादिया मजा आया?
या तैयबा सादिया खामोश खामोश। अच्छा वैसे मजे की बात है, लड़की सिर्फ अनस आया हुआ है। मैं जरा इन लड़कों से पूछता हूँ ना इनकी, मैं वो हटाता हूँ एक्सेस, इनका मैं एक्सेस निकलवाता हूँ जरा, ये कसम खुदा की। मरियम सिंह सर बहुत थैंक्स गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल। कल करें फिर सेशन, इसी को कंटिन्यू करें कि कल एटॉमिक स्ट्रक्चर में चले जाएं। मैं सोच रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे करेंगे। चस आ गई अनस सिंह, चस अनस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, द ओनली गाय हु इज हियर फॉर द प्रैक्टिस सेशन। यार ये लड़कों से जरा मैं बातचीत करता हूँ ना आज जरा, ग्रुप में 46 स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, और ग्रुप वाले ही नहीं आते, ये तो दो बच्चे तो बाहर के आए हुए हैं, और ग्रुप से कितने, ये हाल है आप लोगों का। आप लोगों ने डिस्टिंक्शंस लिए नहीं, इंशाल्लाह लेंगे, आई आई बिलीव इन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इंशाल्लाह लेंगे। बस ये है कि कंसिस्टेंसी रखें, मेहनत करें, लगन से काम करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा। और जो है, क्या कहने लगा था यार मैं, हाँ मुझे आप जरा मशवरा दे कि मेरे ख्याल से ना जो मंडे टू थर्सडे हम क्लासेस रखेंगे तो मिक्स करेंगे। अब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का कर लिया ना थोड़ा सा, तो अब मैं मेरी सोच ये कहती है, आप लोग मुझे मशवरा दें कि कल हम फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर करें अगर मुझे टाइम मिले, फिर परसों केमिकल बॉन्डिंग, फिर तरसों, और ऐसे बार बार रोटेट करते जाएं। तो इस तरीके से बोर भी नहीं होंगे हम लोग, और जो है चैप्टर्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कवर होती जाएगी। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस, इरेगुलर अरेंजमेंट, यस यस, चलो डन, मिक्स विल बी मोर फन आई गेस। हाँ, आई थिंक इट विल बी बेटर बिकॉज यू गाइज वुड नॉट हैव लाइक अ रिपेटिटिव पैटर्न। अब इसमें बार बार वही सवाल होगा तो बंदा बोर भी हो जाएगा कि बस ना, और कितनी दफा करूँ। तो बार बार मिक्स आता जाएगा और दिमाग में वो चीज़ बार बार रिकॉल भी होती जाएगी, तो आई थिंक हाँ ठीक है, मिक्स रखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो सी यू गाइज होपफुली टुमारो, इल बी रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट, हाँ बार बार कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश होंगे, बार बार कॉन्सेप्ट रिफ्रेश होंगे, ठीक है। डन सर, एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर पूछिएगा, अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।